Bismillahirrahmanirrahim. This is the second chapter of the material engineering course. So in this chapter we will briefly discuss the atomic structure of the material and how the various forces at the atomic level interact with each other. So first of all we'll discuss about the atomic structure of the most elements. As you guys have studied before in the metric and FSC and so on, the valence electron will determine most of the chemical properties of the material. Okay, so chemical properties we are particularly important because from these properties the strength of the material comes. So that's why the chemical properties are particularly important. Then for electrical and thermal applications and optical applications, once again the valence electrons are quite important. So electrical properties are dependent upon valence electrons, as you guys have studied the valence band and conduction band in metals and alloys. All the electrons in the valence shell are in the conduction band, so the conduction is quite easy, and that's why most metals are electrically conductive. Thermal properties, usually the materials which are electrically conductive, most of them are thermally conductive as well. Okay, so most materials which are electrically conductive are also thermal conductive, but this is not always the case. There have been special materials which are developed in which if they are electrically conductive, they might not be thermally conductive, or if they are thermally conductive, they might not be electrically conductive. But in general, usually the case is if the material is electrically conductive, it is going to be thermally conductive as well. Okay. Actually, thermal conduction depends upon the phonons. It depends quite on the phonons of the material. Just like for the light, there is a photon, which is the elementary particle. Just that way, the phonon is the you can say the basic particle for the transmission of the sound waves, and also the quantized vibration of the material, which represent manifest itself as the thermal properties of the material. That vibration of the material is quantized, and that is also related to the phonon, because the sound waves travel through the vibration of the material, all the phonons in the material. Okay. Then of course electrical properties depend upon if the incident light, which is composed of photons, if they interact with the material, then it is going to be optically opaque. If the material, if the photons of the light which are incident on a material, if they do not interact with the material, then it's going to be optically transparent. So you can say for optical properties, if the photon interacts with the material in any way, it may interact with the valence electrons, it may interact with the phonons, or the vibration of the material. It can provide energy to the various phenomena, but and to any of the electrons in the structure. But in any way, in any case, if it gets scattered, even, or whatever happens, if anything happens to the incident photons of the material, it's not going to pass through it, and it's going to make the material look opaque. If the photon of the incident light passes through the material without being interacted, then we see that material as a transparent material. So this is the basic way the materials can be opaque or transparent. Okay, so if we move on to the basic wave mechanical model of the atom, this you guys have already been studied in the previous classes, like in FSC and metric even, and that that there's a nucleus, and then there is the radius, or there's a particular radius in which the electrons move around the nucleus. So traditional model says that it is going to be a fixed, almost fixed radius, but the mechanical model postulates that there is always a probability graph, and the point where the highest probability of finding an electron is, then that particular point is going to be called the radius of that particular orbital. But there it's always a probability of finding the electron. It may be
not at this particular radius. It may be a bit inward or outward of this radius as well. So you can say the electron is not bound to this fixed radius, but it can move a bit closer or farther from the nucleus as well. This is the mechanical model of the atom. We will not go much into the detail of this. This is just to give you the idea that atoms are atoms, and the electrons within the atoms, their radius and their paths within the atom, they are not definite. They can there is a probability distribution function which defines where the electrons lies within the atoms. Okay. So next is this is periodic table, typical, which you have studied in matrix and FSC level. This is just the basic overview of how the atoms how the various elements are represented and classified. So here you can see the alkali metals, and then there are these are the transition metals, and then there are non-metals in the periodic table. This is just to give you the overview and just remind how the various elements are distributed in the periodic table. So if we go to the next point, which defines how the forces and energies are represented and distributed within a two-atom system or multi-atom system. For that one, here we see, let's say, two-atom model in which this is the interatomic separation or the distance between the two atoms. As the atoms tends to get closer to each other, the attractive forces start to get stronger. So this is the reason why the atoms tends to get closer together, because of the attractive forces. At higher separation distance, or we can say at higher distance, the atoms are going to have weaker forces of attraction, because just like the gravity, if the you can say the particles in question or the atoms in question, if they are far apart from each other, then there are small forces which are acting upon them, and if they get closer to each other, as they get closer to each other, the forces of attraction tends to increase as the separation decreases as they get closer to each other. Okay, so this is the force of attraction which is going. Okay, here this blue line shows the attractive forces. Here it joins the red line and go this way. So here the red line is a red line, and this shows the net forces which are acting on the material, or net forces which are acting on the atom. Net forces is the combination of attractive forces and repulsive forces. This green line shows the repulsive forces. So to summarize, there are attractive forces between the atoms, there are repulsive forces between the atoms. Attractive forces are represented in this blue line, repulsive forces are represented the green line, and when they add up, of course, the repulsive force, attractive forces, then the net force is represented by the red line. Okay, so as you can see, at farther distances, when the atoms are much farther from each other, जब उनका फासला काफ़ी ज़्यादा होता है आपस में, तो वहाँ पे जो है attractive forces dominant है. ठीक है, इस वजह से एटम्स करीब आते हैं एक दूसरे के. अगर attractive forces dominant नहीं होंगी तो एटम्स एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे. ठीक है, लेकिन जब एक ख़ास डिस्टेंस से करीब आना शुरू हो जाते हैं तो उससे रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाती है. ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, इसलिए एटम एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं हो जाते. ठीक है, आप इस तरह समझें कि चलिए हम पहले ये बात कर लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं कौन सी. मोस्टली हम कह लेते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो कोलम्बिक फोर्सेस हैं. ठीक है, इन जनरल जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं विदिन टू एटम सिस्टम, जिसकी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आर आयनिक सिस्टम्स, देयर आर कोलम्बिक फोर्सेस. Okay, so let's say there are coulombic forces of attraction between the opposite charges, so they tend to attract each other and then they tend to get closer to each other as much as possible.
So now naturally, as you guys understand from the basic understanding of the forces, that if there are attractive forces between any two points or any two atoms or any two materials, then they're going to get closer to each other. Okay, so they are getting closer to each other. So now if they stop at a particular distance, then there should be an opposing force which stops them from getting further closer to each other. ठीक है, वजह समझें कि लेट्स से कि एक ये एटम है, एक ये एटम है. ओके, दे आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर. क्यों आ रहे हैं एक दो क्लोजर टू ईच अदर? ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है, ये करीब आते गए लेट्स से यहाँ पे पहुंच गए. ओके, नाउ दे आर अब भी स्टिल इनके दरम्यान देखें, सेंटर्स के दरम्यान कुछ ना कुछ डिस्टेंस है. ठीक है, so why they do not merge into each other, and why they do not I mean why they are sitting at a particular distance from each other. ठीक है, ऐसा क्यों है? Of course there will be some repulsive forces which counteracts the attractive forces and balances this whole setup. Okay, so to put it simply, attractive forces भी हैं, repulsive forces भी हैं. ठीक है, अगर सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेज हों तो एटम्स एक दूसरे में मर्ज हो जाएं, ये किस तरह हो सकता है कि एटम्स रुक जाएं किसी एक पॉइंट के ऊपर, जिस तरह ऐसे रुके होंगे. ठीक है, ये मर्ज हो जाएं एक दूसरे के अंदर. क्यों मर्ज हो जाएं? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स तो है नहीं. जो रिपल्सिव फोर्स नहीं है तो ये किस तरह रुक सकते हैं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर? इन्हें मजीद एक दूसरे के करीब आना चाहिए. ठीक है, सो देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेज विच आर कोलम्बिक फोर्सेज. जब ये यहाँ पे भी आते हैं, स्टिल कोलम्बिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच अदर. ठीक है, तो ये नहीं है कि अट्रैक्टिव फोर्सेज खत्म हो गई हैं. इस पॉइंट पे आके ये देख रहे हैं जिस तरह अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ते ही जा रही हैं. ठीक है, कम नहीं हो रही है. लेकिन क्या है कि हायर आई मीन फार्दर डिस्टेंस पे, ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर रिपल्सिव फोर्सेज को इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए एटम्स ओवरऑल करीब आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन जो जो करीब आते जाते हैं, जब जहाँ पे टच करना शुरू कर लेते हैं, आप एक सेंस में समझ लें, या आप कह लें कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है. ठीक है, जब दो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऑफ कोर्स ऑर्बिटल्स हैं कुछ ना, जिसमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. जब वो समझ ओवरलैप होना शुरू हो जाते हैं, तब अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं या अपीयर होना शुरू हो जाती हैं. और जो ही डिस्टेंस कम होता है तो ये बहुत ज़्यादा इनमें इंक्रीज आता है. ठीक है, तो वो पॉइंट जहां के ऊपर ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, तो नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी. और ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा इंटरएटॉमिक डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ, जिसके ऊपर दो जो एटम्स हैं ये एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ना, कि एक अट्रैक्टिव फोर्सेज है, एक रिपल्सिव फोर्सेज है. जहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगी, वहाँ पे एटॉमिक ये सिस्टम जो है स्टेबल हो जाएगा, इसी फासले पे रहेगा. इस डिस्टेंस को जो है बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग भी कहते हैं. ठीक है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो कोलम्बिक फोर्सेज हैं. लेट्स से अगर हम आयनिक सिचुएशन की बात करें, सिंपल सिचुएशन बात कर लेते हैं. ठीक है, और जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की वजह से प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, और वो फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि इन कोलम्बिक जो हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करती हैं और यहाँ पे इसे रोक देती हैं. इस वजह से नेट फोर्स जीरो होती है और ये स्ट्रक्चर जो है, सिस्टम जो स्टेबल हो जाता है. अगर सिर्फ ये अट्रैक्टिव फोर्सेज होती, नेगेटिव फोर्सेज ना होती, तो ये यहाँ से आगे जाते जाते ये जीरो पे आ जाता है. डिस्टेंस जीरो का मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे में मर्ज हो गई हैं चीज़ें. ठीक है, अब रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? मैंने आप जैसे पहले बताया, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है. इसे टेक्निकली हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर. इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर क्या है? इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर मीन्स, जिस तरह आपने पढ़ा होगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, के नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. So when the atoms tend to closer to each other, they tend to have the outer shells of electrons. The electrons in the outer shells, they tend to have the same principal quantum numbers. Okay. So by the Pauli exclusion principle, this is not permissible. So this prohibition is manifested as a force in this system. इस बात ये है कि जब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम
फोर्स की टर्म में इस तरह कहते हैं कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक प्रोहिबिट करता है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जब ये एक दूसरे पास होते हैं, मर्ज होने की कोशिश करते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ इलेक्ट्रॉन्स के सेम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये अलाउ नहीं है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर। तो एक फोर्स जनरेट होती है, मैनिफेस्ट सो दिस पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसे इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर प्रोहिबिट करते हैं इन एटम्स को आपस में मर्ज होने से। ठीक है, सो एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होती है। ये रिपल्सिव फोर्स जो है फर्दर जो है इन्हें आपस में मर्ज होने से रोकती है, इसकी वजह से सिस्टम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, जब ये एटम एक दूसरे से दूर होते हैं तो आप देख लें रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू तकरीबन 0 है, क्योंकि ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी का प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अब एक और चीज़ हमेशा याद रखेंगे, ये फोर्स जो है स्मॉल डिस्टेंसेस पे इस फोर्स को ट्रम्प करती है या उससे हायर वैल्यू चली जाती है। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंसेस पे ये रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डोमिनेंट हुई है, तो यहाँ पे जो है ओवरऑल नेट फोर्स जो है नेगेटिव हो गई है। इट मीन्स नेगेटिव फोर्स का मतलब ये है कि अब ये जो एटम्स हैं एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। ठीक है, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ये ज़्यादा है, ऐसा ऐसा कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पे जब एटम्स है तब भी स्टेबल नहीं है, यहाँ पे जब एटम्स है तब भी स्टेबल नहीं है। जब नेट फोर्स 0 होगी तब सिस्टम स्टेबल होगा। ये चीज़ आप ऑलरेडी स्टैटिक्स वगैरह में पढ़ भी चुके हैं। स्टैटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्स जो नेट फोर्स 0 होगी तो सिस्टम जो है वो रेस्ट पे आएगा या स्टेबल होगा। इससे इस साइड पे होगा तो एटम्स करीब आते जाएंगे, इससे इधर आएगा तो एटम्स दूर होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्मॉल डिस्टेंसेस पे क्योंकि रिपल्सिव फोर्स जो है बहुत तेज से डोमिनेट करती हैं, इसलिए जो है ओवरऑल जो सिस्टम स्टेबल होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हो सकता, ये यहाँ पे आके स्टेबल होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस की बात करते हैं। आमतौर पे अट्रैक्टिव फोर्सेस तो पहले से आपने पढ़ी भी हुई हैं, कोलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये इजीली अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस जो है स्मॉल डिस्टेंसेस पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। अब अगर कोई ऐसी फोर्स हो जो इस फोर्स से इंक्रीज कर सके, इस फोर्स से जिसकी वैल्यू बढ़ जाए, तो एटम्स फिर करीब जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ बात की इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर की या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। ठीक है, ये डे टू डे लाइफ में या पहले अर्थ के ऊपर ये होल्ड करता है, एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर ज़्यादा है और एटम्स एक दूसरे से करीब और नहीं जा सकते। लेकिन किसी तरीके से इन एटम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्स या किसी वजह से बढ़ जाएं तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। ये चीज़ जो है ये जो सिचुएशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती ये। लेकिन ये अगर हम बात करें न्यूट्रॉन स्टार्स की या ब्लैक होल्स की, जिससे आपने सुना होगा, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन उसमें जो है मटेरियल जो है वो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर जो फोर्स रिपल्सिव फोर्स है ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ग्रेविटी इससे बढ़ जाती है। जो ग्रेविटी की जो है फोर्सेज जब इससे बढ़ जाती हैं तो ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। तो वहाँ पे जो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर जो मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है वो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह एक दूसरे जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये वाला होल्ड नहीं करता फिर ना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होल्ड नहीं करेगा, ये स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। तो एटम जो हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस एक न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं होंगे, ये दूसरे न्यूक्लियस पे भी जा सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर इस तरह मूव करने का इलेक्ट्रॉन्स का ये कोलैप्स कर जाएगा। तो यहाँ पे भी लेट्स से एक न्यूक्लियस है या बहुत ज़्यादा रैंडमली कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं उसे, उस फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ये इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ये गैप होता है प्रैक्टिकली ना, इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसिस हैं। तो ये स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा तो डेंसिटी जो है ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, वही एम्प्टी स्पेसिस खत्म हो जाएगी तो डेंसिटी मटेरियल की बढ़ जाएगी। इसीलिए जो अर्थ के ऊपर डेंसिटी है इन जनरल वो है 10⁻³ kg के करीब है, 10⁻³ to 4 kg हो गई तकरीबन ना, kg
पर क्यूबिक मीटर, इसी रेंज में होगी तकरीबन। ठीक है, डेंसिटी। जो न्यूट्रॉन स्टार की बात करें अगर हम, या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर हम ब्लैक होल्स की बात करें, तो उनकी डेंसिटी 10⁻10 kg भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस स्ट्रक्चर के साथ इतनी हाई डेंसिटी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये कोलैप्स कर जाता है वहाँ पे, इस वजह से, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर से उसकी फोर्सेस बढ़ जाती हैं। सो यू कैन से कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की जगह ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि ये रिपल्सिव फोर्सेस से भी उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे अर्थ के ऊपर डे टू डे लाइफ में ये स्ट्रक्चर होल्ड करता है, इसलिए एटम जो है एक दूसरे के ऊपर एक मतलब इस ये जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है उनमें मेंटेन रहता है, और इस तरह ये जो फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेती हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इसी फोर्सेस को एनर्जी के फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ है। एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा उसकी वैल्यू, वो स्टेबल सिस्टम तब होगा जब उसकी वैल्यू एनर्जी की जीरो से कम होगी। ये थर्मोडायनेमिक्स लॉ में भी आपने पढ़ा होगा, जो भी स्टेबल या स्पॉन्टेनियस सिस्टम होता है उसमें ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की जो होती है वो जीरो से कम होती है, या आप कह लें कि इनिशियल फॉर्म में जब एनर्जी का लेवल है तो अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो सिस्टम इस डायरेक्शन में, लेट्स से एटम्स करीब आ रहे हैं एक दूसरे के, अगर स्पॉन्टेनियस सिस्टम है तो एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, विच मीन्स कि इस सिस्टम में से एनर्जी जो है बाहर जाती जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम एनर्जी की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि जो जो ये एटम्स करीब आते जा रहे हैं एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। सो वंस अगेन जो ब्लू लाइन है यहाँ पे वो अट्रैक्टिव एनर्जी को शो कर रही है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस को शो कर रही है, यहाँ पे अट्रैक्टिव एनर्जी को। जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो ये ब्लू लाइन में यहाँ पे रिपल्सिव एनर्जी को शो कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कि जिस जगह पे एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी वहां पे सिस्टम स्टेबल होगा, जहाँ पे एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी वो जगह स्टेबल नहीं होगी। जिस जगह आप एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है वो जगह स्टेबल है। फोर्सेस में स्टेबल पॉइंट वो होता है जहां पे फोर्सेस जीरो हैं। एनर्जी की टर्म में स्टेबल सिस्टम वो होता है जहां पे एनर्जी की वैल्यू जीरो हो। जो सिस्टम यहाँ पे है वो कोशिश करेगा यहाँ पे आ जाए, जिस तरह जो सिस्टम यहाँ पे है वो कोशिश करेगा वो आगे आगे जाते जाते यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो जहाँ पे एनर्जी मिनिमम है तो ये डिस्टेंस आप नोट करें, जहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ पे सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ये इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, इट मीन्स कि एटम के दरमियान इतना डिस्टेंस जो है वो मिनिमम एनर्जी पे है, तो इतने डिस्टेंस के ऊपर सिस्टम स्टेबल है एटम्स का। और आप देखेंगे कि इसे देखते जाएं तो ये जीरो फोर्स के ऊपर सिस्टम स्टेबल है, ये वही जीरो फोर्स के ऊपर जो है वो मिनिमम एनर्जी होगी सिस्टम की। ठीक है, तो सिस्टम यहाँ पे स्टेबल होगा। ओके, सो जीरो फोर्स जहाँ पे होगी वहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी, और उस मिनिमम एनर्जी पे सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मज़ीद क्वेश्चन वगैरह भी सिंपल से क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, सो एज टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेटअप। ओके, अल्लाह हाफिज़।